darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering all the love that you are. For all those people who are new here, अगर आपको content पसंद आएगा, please hit the subscribe button and follow us on Instagram. These are the IDs and वहाँ पे आपको हमारे बहुत जल्दी शॉर्ट में पता चलता रहता है what we are up to with the vlogs. It takes time for us to edit and upload. And अगर आपने कल का vlog नहीं देखा है तो I would suggest please pause this vlog. आप कल का देख लो because this is a series of yesterday's vlog which we basically started with how we met in college and how we separated after college. This vlog we are going to tell you after 7 years of separation how we met again until we got married. Correct. बहुत ही स्पीड में बोल दिया. तो कैसा हुआ कि 7-8 साल निकल गए थे, हम लोग टच में नहीं थे. वन फाइन डे मुझे ऐसा लगा कि एक बार अपर्णा से बात करके देखता हूँ. और उस टाइम मैं था अपने फ्रेंड्स के संग कहीं बाहर ट्रिप पे. तो मैंने कोशा से अपर्णा का नंबर लिया और मैंने अपर्णा को फ़ोन लगाया हालचाल पूछने के लिए. बिकॉज वहाँ तक मुझे पता था कि अपर्णा की शादी हो गई है, अपर्णा का छोटा सा बेबी है. तो ऐसे ही मुझे लगा कि एक बार बात करके पूछ लेना चाहिए कैसी है. सो मैंने अपर्णा से बात की, अच्छे से हमारी बात हुई. फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने वापस से अपर्णा को कॉल किया तो अपर्णा ने फ़ोन नहीं उठाया. कंटिन्यूसली मैंने 2-3 बार किया, अपर्णा ने फ़ोन नहीं उठाया. मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है. तो फिर मुझे फ्रेंड से मुझे पता चला कि अपर्णा लॉस्ट फादर. करेक्ट. तो इसीलिए अपर्णा फ़ोन नहीं उठा पा रही थी. So basically, so when he called that day, we spoke almost after I think 7 or 8 years. And he congratulated me for the baby. I was going through my marriage troubles, but उस टाइम मैंने बताया नहीं because उस टाइम तक I had just come back assuming कि when I go back चीज़ें ठीक हो जाएंगी. So not even my relatives or anybody knew, only Didi, Raghu and Mama, Papa knew about it. It was a sudden death, so it was like a major shock to all of us. Now 2-3 दिन obviously हम कोई भी condition में नहीं थे to be able to talk. Through Vicky, I think इनको पता चला, who also stays in Bilaspur. We were all common friends, so through him he came to know that I've lost Papa. I decided within 4 to 5 months that I'm going to move to Pune because आकू का schooling I wanted the base to be very strong, जो बिलासपुर में मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी. So also दूसरा रीज़न ये भी था कि बिलासपुर इज़ अ वेरी हमारे जो अराउंड लोग होते हैं, I don't know how well developed बिलासपुर is. This is around 10 years back की बात. तो उस टाइम क्या होता था ना कि जो भी आता था they used to be like अरे आकू को देख के she was just a newborn baby and जो भी हुआ her life had to start correctly. But everybody used to be like अरे बहुत ख़राब हुआ लड़की के संग यार, फादर भी चले गए, नाना भी चले गए. So I told मम्मा, I said यार मम्मा I don't want my child to grow up with this. अब जो हो गया है we cannot change that. But ये thoughts और ये energies के संग I don't want Aku to grow up. So I decided to come to Pune alone with Ashrika when she was, I think she had just turned 1 year old. वहाँ से we were still in touch, we were talking and everything as friends because we were talking and all, but उस time तक I was very sure that I have a small child, so I wanted to get married faster because for anybody to accept Ashrika as a younger children, they जो भी जैसे जतिन बहुत बार बोलते हैं कि मैंने पहला 1 साल मिस कर दिया आकू का. So I thought अगर कोई सही person मिल जाएगा, I wanted the whole childhood of Ashrika to go with having a father, not having a father. So I had started like meeting people and कोई रिश्ते आ रहे थे, so I was meeting them. और इसके साथ साथ मुझे भी रिश्ते आ रहे थे क्योंकि मेरा भी डिवोर्स हो गया. तो मम्मा सब बोल रहे थे कि अब सेकंड मैरिज करनी पड़ेगी, ऐसे लाइफ नहीं चलेगी. तो मैं, मम्मी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स अलग मेरे लिए लड़कियाँ देख रहे थे. यहाँ पे अपर्णा के फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह अलग लड़के देख रहे थे. अच्छा, इसके बीच में हमारे दोनों का डिस्कशन भी होता था कि आज इसका फ़ोन आया या इसका फ़ोटो देखा मैंने. यहाँ अपर्णा के संग भी यही होता था कि किसी रिलेटिव के थ्रू कोई रिश्ता है तो अपर्णा मिल रही है उससे. तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे नहीं मिलो, देखो करना तो है ही शादी. तो बेसिकली उस टाइम हमारी एज फ्रेंड्स वापस बात होनी शुरू हो गई थी. वी वर देयर फॉर ईच अदर एज, बट हम मिले नहीं थे उस टाइम तक. वी नेवर मेट. वो 7 साल के बाद भी ही वॉज इन बॉम्बे, आई वॉज इन पुणे, बट वी नॉट मेट. मेरा टेंजेंट ही अलग हो गया था. ऐसे क्या जतिन बेकार में खराब होता है नाम, एंड आई रियली नीड टू गेट मैरिड एंड ऑल्सो आई बी इन टच विद यू थ्रू द फोन, बट आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू. नाउ एक दिन ऐसे ही बात होते होते आई थिंक 4-5 months हो गए थे ऑफ मी बीइंग इन पुणे, एंड ही सडनली, आई वाज टेलिंग हिम अबाउट दिस गाय दैट आई हैड मेट who is still a very close friend of mine now. So I was just telling him, I was like, क्या जतिन, he is a very good person. और मेरा पूरा उस टाइम जजमेंट
हाउ वी व्हेन वी आर मीटिंग द गाइज फॉर मैरिज, वो होता है कि हाउ ही विल बी एज अ हस्बैंड. मेरा पूरा जजमेंट था हाउ ही विल बी एज अ फादर. So that was the first guy I met. I said that वो ना मुझे ऐसा लग रहा है he'll be a very nice father to Ashika. So Jatin was like ठीक है go ahead and all. फिर पता नहीं 4-5 दिन में I called that guy. I was like you are such a wonderful friend. But मैं नहीं, I think I'm not. I felt that day that I'm probably not ready for marriage. So we are still very good friends. So he's one of the favorites of Ashika as uncle now. So but उस टाइम पे फिर जतिन से मेरी बात हुई. I just thought यार मैं इनको इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ, न्यू लोगों के संग वापस सेम ओल्ड स्टोरी, यू नो, सामने से कुछ और अंदर से कुछ और. वी नो ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, वी नो ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ आवर लाइव्स. बट उस दिन मेरी बात हो रही थी, तो आई थॉट कि मैं जतिन से पूछती हूँ दैट यू नो शुड वी गिव इट अ ट्राई. एंड उसी दिन कोइंसिडेंटली 2-3 दिन के अंदर ही कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक मुझे आपसे मिलना है. सो आई वाज लाइक, एंड आई वाज नॉट मीटिंग गाइज एंड ऑल ऐसे कि मतलब चिल करना, पार्टीज करना, बिकॉज आपको बहुत छोटी थी एंड एवरीथिंग. सो आई टोल्ड हिम मेरे 2 रूल्स हैं, मैं बंदे से अकेले नहीं मिलती और दूसरा मैं 7 बजे के बाद नहीं मिलती. सो बॉम्बे से आना है तो दोस्तों के संग आओ, अकेले नहीं मिलूंगी मैं, और 7 बजे के ऐसे पहले आओ कि मैं 7 बजे घर वापस पहुंच जाऊँ. He picked up Pratnesh and Sandeep. He's like, भाई लड़की से मिलने जाना, अकेले मिलने को तैयार नहीं है, प्लीज चल मेरे साथ. उन दोनों के संग में आया यहाँ पे, तो मैंने अपर्णा से कहा कि अपर्णा आई वांट टू गेट मैरिड टू यू. तो अपर्णा ने कहा कि ठीक है ट्राई करके देखते हैं एक बार. लेकिन फिर मेरी फैमिली थोड़ा सा मतलब ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, तो अपर्णा ने पूछा कि क्या बोलेंगे वहाँ पे. तो मैंने कहा देखो दादाजी से बात करनी पड़ेगी. तो मैंने कुछ दिनों में फिर दादाजी को फ़ोन किया. मैंने कहा दादाजी एक लड़की पसंद है. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है. मैंने कहा एक और बात बोलनी है. तो उन्होंने बोला बोलो. तो मैंने कहा बापूजी बच्चा भी है. तो दादाजी, मैं बहुत ज़्यादा सोचा था कि बम्बार्डिंग होने वाली है, लेकिन दादाजी ने मुझसे पूछा लड़का है या लड़की. तो मैंने कहा बापूजी लड़की है. तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती. और फिर दादाजी अपना की फैमिली से मिले, बिलासपुर गए हम लोग, वहाँ हमारी एंगेजमेंट हुई और कुछ महीनों में हो गई हमारी शादी. But the twist to the शादी is also there. शादी ऐसी हुई कि शादी के लिए हमसे ज्यादा एक्साइटेड आपको थी. मम्मा डैडी आर गेटिंग मैरिड, मम्मा डैडी आर गेटिंग मैरिड. हमारे पूरे कपड़े, हमारा सब कुछ शी चोज एवरीथिंग, व्हाट शील वेयर, हाउ शील वेयर. और उसके बाद जब शादी हुई, सो आई डिडंट वांट लाइक अ ग्रैंड वेडिंग. आई जस्ट टोल्ड जतिन दैट आई वांट द पूजा पार्ट टू बी देयर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू स्टार्ट समथिंग पूजा एंड स्पिरिचुअली दैट शुड गेट करेक्टेड. सो जो पूजा हो गई, पूरा वो 4 फेरे और हमने ले लिए, तो आशिका का मूड ऑफ. आज लाइक आपको क्या हो गया? शी इज लाइक इतनी छोटी शादी कौन करता है मम्मा, आई वांटेड एवरीथिंग, आई वांटेड लॉन्गर वेडिंग. उसके पहले उसने 2-3 शादियां देख रखी थी, तो शी थॉट कि वैसी वाली शादी होगी. तो गुस्सा हो गई थी. सो दैट वाज द वेडिंग गॉट ओवर. अब सारे बच्चे और सारे ओल्डर पीपल लाइक बापूजी, मम्मा लोग सब घर चले गए. अब उसके बाद ये हुआ कि हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स को हमने बुलाया था. वी वर अराउंड 20-25 पीपल एंड आई वॉज इन माई पोशाक, लाइक पोशाक विद बड़ा नथ एंड एवरीथिंग. अब पिक्चर आप देखोगे तो समझोगे. सबके सब वेडिंग आउटफिट में. वहां से भी डिसाइडेड कि हम क्लबिंग जाएंगे, बॉम्बे के क्लब. We called a person who Jatin knew, close friend of Jatin. He called and he's like भाई मुझे ना मेरी अभी शादी हुई है, मुझे एक पूरा पोर्शन चाहिए, हमें पार्टी करनी है. अब वो हम सब और कैसा था कि अब शादी के कपड़ों में हम किसी भी क्लब में ऐसे जाएंगे तो बहुत अजीब लगता है. मैंने फ्रेंड से बात की और मैंने कहा कि भाई ऐसी सिचुएशन है, हम लोग सारे के सारे शादी वाले आउटफिट में हैं, क्या हम क्लबिंग करने आ सकते हैं तेरे क्लब में? उसने बोला यार ये कैसी बात है यार, धीरे से मतलब ऐसा पहले मुझे बता देता तो मैं कुछ अरेंज करके रखता. मैंने कहा देखो भाई सिचुएशन नहीं है, जल्दी बता हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं. वहीं डिसाइड किया और मेरे ख्याल से 45 मिनट्स में हम उसके क्लब में. और हम सबके सब मतलब people are with their jewelry and boys are in their sherwanis and all with somebody with pagdi and all enter कर गए. People are staring at us. हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हम तो we are busy clubbing and all. उसके बाद हो गया 4-5 घंटा. बाहर आए, अब मतलब वो इस लेवल पे हो गया था कि अब मतलब हमें ओनर्स ने बोला कि भाई अब तुम लोग को निकलना पड़ेगा. अब इससे ज्यादा अगर हमने लेट किया तो पुलिस आके चेक कर देगी. तो हम सब बाहर आ गए. बाहर आए,
अब सब इस जोश में थे शादी के कि अब अच्छा, उसमें सिर्फ रघु वाज ओरिजिनली फ्रॉम माय साइड और सब हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, बिकॉज कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे जैसे आमिर, भाऊ, गिरीश, ये सब मेरे भी उतने क्लोज फ्रेंड हैं जितने जतिन के थे, या कोशा, नेहा एंड ऑल, वो दोनों साइड से ही थे। अब सडनली हो गया, आई वाज लाइक चलो एंड ऑफ द डे शादी हो गई, क्लबिंग कर लिया। अब एवरीबडी, किसी के तो दिमाग में फितूर आया कि जूता चुराई तो हुई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रस्म है वो। इमीडिएटली इमेजिन बॉम्बे क्लब में हम लहंगे में, ज्वेलरी में 2 डिवीजन हुआ कि कौन अपर्णा साइड से होगा और कौन जतिन साइड से होगा। और फिर क्लब में जूता छुपाया गया और उसके बाद जूता चुराई हुई, वो पूरा फंक्शन हुआ वेयर यू नो यू हैव टू सर्च एंड देन जतिन हैड टू गिव टू द गर्ल साइड। मोस्टली सबको मेरे साइड रहना था क्योंकि पैसे मिलने वाले। All that happened and then finally we all went to the hotel that we had booked. वहाँ I think 5 बजे तक चिल किया। Then everybody left. अच्छा, मुझे ना वो बहुत मजा आता है कि वो कार में वो जो रोजेस लगे रहते हैं ना कि दुल्हन जा रही है वाला फील। तो मैंने जिन्नू को बोला था, जिन्नू यार वो करा देना, हु इज हिज यंगर ब्रदर। तो जिन्नू ने एकदम कार वार आके पार्क कर दी, उन्होंने मैसेज कर दिया भाभी द कार इज पार्क्ड, आप और भैया इसमें ही घर आना। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, हम अंधेरी में थे, वी वर इन व्हिच होटल? नोवोटेल। सो वी वर इन नोवोटेल। तो मुझे लगा अब वो वाली गाड़ी में मैं बैठूंगी, आई वॉर अ साड़ी एंड ऑल विद चूड़ा एंड एवरीथिंग, फुल न्यू वेडिंग वाली फीलिंग। सो आई टोल्ड जतिन कि ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं मम्मा के पास, घर पे सब लोग घर पे ही हैं। बट एज फेट हैड इट, जतिन टोल्ड मी बेबी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, अंधेरी में ही है। शूट था, आई थिंक। शूट नहीं था, मीटिंग थी। अच्छा। टेलिंग मी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, तो या तो एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको संग चलूं, घर पे छोड़ूं। आई वाज लाइक कांदिवली एंड अंधेरी व्हिच इज ऑलमोस्ट 1 hour डिस्टेंस। सो आई टोल्ड हिम यार नहीं, आप एक काम करो, आप जाओ अपना निपटाओ, मीटिंग शूट जो भी है, मैं जाती हूँ। तो एट द एंड मेरी विदाई ओरिजिनली कैसे हुई है, आई एम ड्राइविंग माई ओन कार विद फ्लावर्स स्टक ऑन इट, विदाउट एनी रिलेटिव, विदाउट एनी हस्बैंड। आई रीच। अच्छा, जैसे ही मैं घर पहुंची, दोनों मम्मास, माई मॉम एंड जतिन्स मॉम, दोनों का मुंह नीचे, तेरे एक लड़ाई हो गई। दे थॉट कि लड़ाई हो गई है हमें साथ में। आई वाज लाइक नहीं, वो शूट उनका काम आ गया था, ऑल द वे कहाँ आते वो मुझे छोड़ने, तो मैंने अपनी खुद की विदाई कर ली। So yeah, that was the journey. So ये थी हमारी जर्नी कि हम लोग वापस 7-8 साल के बाद कैसे मिले और वापस हमारी शादी कैसे हुई और कितनी सारी हम लोगों ने मस्ती की इसके बीच में। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के संग शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को फॉलो करें, बहुत सारे नए नए रील्स हम लोग वहाँ डालते रहते हैं। एंड या दिस इज इट। And until we see you guys again, keep shining. टेक केयर। Thank you.